Mm, yes. So in our last lecture, what we have seen was that um, yes, so MSE is not good, and we have also seen that KL divergence is also not very good, and because of all both of these things, if I say that our BAE is not performing well, and there was a very specific reason to choosing these things, like why you have used KL divergence forward thing, backward instead of the forward, and mean seeking and mode seeking things we also have seen. After that, we have seen that the reverse scale divergence is having certain benefits. So because of that, it was being actually used for BAEs. And later we have seen that how to find out the KL divergence between all of them. These six things, the forward as well as the backward reverse scale divergence. And later we have seen that if we talk about something which is actually a different type of divergence, that is JS divergence, which will say that I have a P, I have a Q, and in between I'm having some M. What's the difference from what's the distance between them and what's the distance between them? And the average distance between them is going to, talk about the JS divergence of that, of this P and Q. So this is essentially that we find out something which is in between, and wanted to find out that how far this between thing is. So how different these two distributions are, if they are very different, then and then if they are very similar, or you say that they are equidistant in terms of that M is actually exactly in between and it's not very far from Q. The average behavior is not very far from Q, but maybe far from Q. So these type of things are actually JS divergence started to see, and later we understand that JS divergence is actually a divergence is slightly better than the previous reverse scale divergence. I request to please mute your microphones. And what we have seen is that if you use JS divergence is slightly better version, because when the things are completely, not overlapping at that point of time, JS divergence is at least defined and it's going to give you certain values. And later we have seen that, and it's being said, and that's the thing that we are going to prove as well, that in the cases of generative adversarial network, they started to exactly use the JS divergence between the real distribution and the distribution of the generated things, and wanted to somehow minimize. That is a generative adversarial network, in which so what we have shown as well. So here you can see that this decoder is actually coming here and encoder is actually going here. It's just the reverse form of X. And in the case of encoder, we were not touching this distribution directly. We first converted into Z and then only touch the distribution of this Z. Here, instead of that, we take some Z's which are coming from unit normal distribution, generate certain things, and make the ability or give the ability to this generator that, see, you will have to come up with something from the unit normal or randomly distributed thing to an image. You follow such a distribution which is very close to the distribution of the real data. And how to make sure that this distribution and this distributions are going close to each other, we come up with a discriminator. This discriminator has to somehow understand that the samples which are being shown, they are coming from the real distribution and the fake distribution. So that discriminator work is to somehow understand that uh, the real distribution and the fake distributions are distributed. And once you understand that, you can easily find out that a given point or the sample which is given to you, either it is coming from this class or that class. It is just a simple classification network. And all those points, so the work of the generator is to fool this, so actually come up with something which is so real that discriminator is not able to differentiate between the fake thing. So it actually have to somehow make things which are such that they are very close to, they are really very close to the real distribution of our data. How to get this real distribution of our data is the point that discriminator is going to incorporate in its loss function. Now it comes that
So what you can see is that here you are directly challenging the distribution that I'm explicitly going to learn the image distribution, which is actually a very high level or heavy level distribution. But it's good. I request that please mute your microphones. Mute your microphones. Yes. So, so here you can see that, yeah, we are directly going to estimate this distribution, that is the real distribution, and via this, so this has to somehow make the distance between both of them as close as possible. That's the that's the work of this discriminator. And we have also said that the generation, so it has to generate samples, adversarial. So this is going to be, you know, some adversarial constant opposition which is going to be there. And instead of coming up with something like L2 loss or something, it is going to talk about another type of loss. This type of loss is actually called as adversarial loss. So instead of you know, coming up with MSE or things or the KL divergence, it started to talk about that if you give me a real data or a fake data, how well I can differentiate between them. So that is actually the type of discriminative training or the adversarial loss. There are going to be two networks. One is the generator, one is the distribution, a discriminator, and they both are going to work in such a way so as to realize they both are going to compete in such a way so that generator at last started to fool this discriminator. And at that point of time, discriminator is not in a position to really differentiate between something which is coming from real or something which is coming from fake. And in that case, your generator is now ready. You take this generator, discard this discriminator, and now your generator is able to take anything from real Z or the you know, random distribution, unit normal distribution, which is taking certain Z's and trying to generate something which is as close as possible, very close to the real distribution as seen by this discriminator. Real distribution as seen by this discriminator. With respect to this discriminator, this generator is generating certain things which discriminator is not in a position to differentiate between whether it's a real or a fake. How it's going to do that? We have also seen that in the case of generator, Z is going to be a 128 dimensional vector which is going inside my generator and going to give me a Z, maybe some upsampled version or some sort of image. So it's going to be a deconvolutional neural network. This is a deconvolutional neural network. And the complete diagram can actually be shown that I have got a distribution of Z. I have got a distribution of the fake things which are actually the GZ. So distribution followed by GZ. And I have a distribution of X is the real thing. So I sample something from here, give it to my network. It's actually a mapping function which will take a Z and convert it into an X, deconvolutional function, give you a GZ following a type of distribution. And the work that these two things are as close as possible. How we are doing that? We are doing it in such a way so that I will take few points, generate few points, take few points from here, merge them into a single batch. And if it is taken from the real, the value is equal to 1. If it is taken from the fake, the value is going to be 0. It's going to be 0, 1, and so on. And the discriminator's work is actually to somehow come up with 1 and 0, and basically to somehow tell the label of X. This was the base that we just have made. Sir? And yes. Yes. Sir, एक doubt है sir. You can ask. So where we have created a batch in discriminator, yes sir. Yes. Sir, let's say if we are giving it 5 samples from GZ and 5 samples from real data set. Sir, what is happening actually here? Why are we labeling it? And sir, अगर हमने एक random points लिए हैं GZ से, and sir जो 5 data हमने real input से लिया है, तो उसके बाद हम जब हमने इसको discriminator को फूल कर दिया, उसके बाद हम वो 5 images नहीं लेंगे. मतलब यहाँ पे कैसे काम हो रहा है? यहाँ पे काफी डाउट्स. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको फिर से.
और हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी अभी तक सभी के दिमाग में वो MSc और KL टाइप की बातें निकल नहीं पाई हैं। वो एक तरीका है, अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं और उस इमेज को दिखा करके आपसे एक इमेज बनवाऊं और फिर बोलूं कि जो आपने बनाई वो मेरी इमेज जो आपको दिखाई थी उसी के जैसी है कि नहीं, इस तरीके का काम BAE टाइप के रीजनरेशन, इसको कहते हैं रीजनरेशन में काम आ रहा था, जैसा BAE वगैरह कर रहा था। गैन क्या कर रहा है कि वो आपके सामने इस तरीके की कोई बात ही नहीं करता कि कोई इमेज थी पहले जिससे कि देख करके कुछ बना है। कोई इमेज की तो बात ही छोड़िए, एक आपके पास स्पेस था, यूनिट नॉर्मल स्पेस, यूनिट यूनिट दिस थिंग, यूनिफॉर्म रैंडम स्पेस। अगर इससे मैं कुछ सैंपल करूं तो आप कोई ना कोई चीज तो इमेज आपकी बना ही देंगे ना, आपका नेटवर्क कुछ ना कुछ तो बना देगा। बात ये आती है कि जो बनाते हो, जो कुछ भी तुम बनाते हो वो कितना रियलिस्टिक है। तो ये एक पुलिस की तरह से डिस्क्रिमिनेटर को खड़ा करा और इसने बोला कि जरा बहुत इंफॉर्मेशन, कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन को लेकर के तुम एक नोट बना दो, इट्स अ फेक करेंसी। इस फेक करेंसी को जब पुलिस को दिखाओगे तो पुलिस को भी पता नहीं कि रियल करेंसी क्या है। तो रियल करेंसी के साथ जब पुलिस ने इसको रखा कि यार ये रियल होती है और ये फेक है, तो रियल करेंसी को देख रहा है कि अरे ये 2000 का नोट जब पहली बार एकदम नया नया आया था तो ना दुकानदार को पता था कि 2000 का नोट असली वाला कौन सा है और नकली वाला कौन सा है। धीरे धीरे करके तो शुरू में बहुत से लोग बेवकूफ भी बन गए होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर वाज आल्सो नॉट अ वेरी वेल ट्रेन्ड डिस्क्रिमिनेटर, तो उसको पता ही नहीं चला कि यार ये रियल 2000 का नोट है कि फेक 2000 का नोट है। एंड if it is a real or if it is a fake, then what is going to happen that कि शुरुआत में discriminator is also going to not in a position to really understand कि हो क्या रहा है, तो वो फेक चीजों को भी यस बोल देगा, रियल चीजों को भी यस बोल देगा, या रियल चीज को भी फेक बोल देगा और फेक चीज को यस बोलता चला जाएगा। बट हो यहाँ पे ये रहा है कि धीरे धीरे उसे यही सीखना है कि जो रियल आ रहा है उसके साथ बताया जा रहा है ना उसको कि देखो ये रियल है, तो अगली बार से तुमने गलती करी है, अगली बार ऐसा मत करना, और ये फेक है, अगली बार से ऐसा मत करना। ये तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस पे चलेगा, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस पे ये धीरे धीरे करके सीखेगा यही बात कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग नाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। धीरे धीरे चूंकि इसको पता चलता है कि यार ये रियल इमेजेस हैं, और रियल इसको चूंकि पता है, जो दुकानदार था उसको असली नोट भी सरकार से मिल रहे थे, वो खुद भी तो गया ना ATM से निकाल लाया जा करके। जब वो खुद भी ATM से निकाल रहा है तो अब जब कोई नया नोट आता है तो वो ये देखता है कि अच्छा ये नया नोट जो है ये रियल है कि फेक है, और जो नकली नोट उसको जो इसने असली लेके आया था वो रियल है कि फेक है, और धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन को जानने लग गया। अच्छा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेटर सीख रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जनरेटर ने उसको एक ऐसा नोट पकड़ा दिया और उस नोट को देख करके उसने कहा तो सिमिलर ही लग रहा है, सिमिलर लग रहा है, उसने यस बोल दिया, इसने कहा वो इसका मतलब है कि इस तरह की चीजें, इसको नहीं, ये कभी टच नहीं कर सकता इस चीज को। ये जो एडवर्सरियर है या जनरेटर है, ये अपने ATM से जाके कभी पैसा नहीं निकाल सकता, ये नहीं देख सकता कि रियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसको रियल डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए, समझने के लिए कुछ तो डेटा बनाना है, और डिस्क्रिमिनेटर के फीडबैक के द्वारा ही सिर्फ ये सीख सकता है और किसी चीज से नहीं सीख सकता। आप फिर से पूछें, अभी अगर अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग इसको और डिटेल में देख सकते हैं। ये सर, तो सर रियल डेटा सेट से सर जो हमने 5 इमेजेस ली हैं, हाँ, हमारा हमारा गोल क्या है कि हमने जो फेक जनरेटेड इमेजेस हैं हमने उन 5 इमेजेस के साथ मतलब उसके नहीं नहीं सिमिलर नहीं, बना। वो बिल्कुल अलग है, नहीं 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 नहीं, ओके, वो नहीं है भाई। आपके पास 5 रियल आ गई और 5 फेक आ गई, आप डिस्क्रिमिनेटर हैं, आपके पास 5 रियल इमेजेस आ गई और 5 फेक इमेजेस आ गए। आपको क्या करना है कि जो 5 रियल आई हैं उनके लिए 1 दो, और जो 5 फेक आई हैं उनके लिए 0 दो। अगर आप जिन जिन इमेजेस के लिए ऐसा नहीं कर पाती हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपका लॉस ये बनेगा जिससे कि आपको बैक प्रोपोगेट किया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेटर की जिम्मेदारी ये है, क्या आप समझे ये बात? डिस्क्रिमिनेटर को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि ये X1 है, ये X2 है, ये X3 है, और ये X4 है, और ये X5 है, और ये G ऑफ Z1 है, G ऑफ Z2 है, G ऑफ Z3 है, G ऑफ Z4 है, और G ऑफ Z5 है।
इसको इससे मतलब नहीं है कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या ये निकाल सकता है ऐसी रिलेशनशिप? ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, इसमें मेमोरी कुछ नहीं है। एक बार एक्स अंदर जाएगा, ये जवाब दे के भूल जाएगा कि क्या देखा था पहले। तो इन 10 इमेजेस को ये एक एक करके देखता है। पहले x1 देखेगा, फिर x2 देखेगा, फिर gz1 देखेगा, जैसा भी बैच में लगा होगा, और अकॉर्डिंगली एक क्लासिफिकेशन है। इसको जस्ट इन 10 चीजों को इनके करेक्ट क्लासिफिकेशन पे पहुंचाना है, यही जिम्मेदारी डी की है। पहले बोलिए, आप ये बात समझ गए कि नहीं? यस सर। सर इट मीन्स कि हम पर इमेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लर्न कर रहे हैं, हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर रहे हैं। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर रियल डेटा सेट इमेजेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो लर्न कर रहे हैं। मतलब सर हाँ PGZ और PX के बीच में गैप कम कर रहे हैं हम ओवरऑल। हाँ, देखिए क्या चीज कम कर रही है, यही चीज सीखनी है। आगे देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में कैसे आता है। अभी तो आप इसको बेसिक के क्लासिफिकेशन टास्क के तौर पे देखें कि आपको मैंने कैट इमेजेस, डॉग इमेजेस दी। अपने मन में सोचिए कि आपको मैंने रियल और फेक इमेजेस दी। रियल मतलब ऐसी इमेजेस है जो MF हुसैन ने बनाई है, और फेक इमेजेस ऐसी इमेजेस जैसे जो सलमान खान ने बनाई है, या मतलब जो फेक आर्टिस्ट है उन्होंने बनाई हुई है। तो इस तरीके की अगर आपको कोई फेक इमेज दी जाती है, तो आप उसको शुरुआती स्तर पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे कि देखो मैं खुद ही नहीं हूं, मेरे को इतना आता ही नहीं है डिस्क्रिमिनेट करना। तो धीरे धीरे आप उसको डिस्क्रिमिनेशन सीख पाएंगे। और वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि जनरेटर शुरू में बहुत पुअर इमेजेस बना रहा होगा, मतलब ब्लैंक इमेजेस बना के दे देगा, ब्लैक इमेजेस बना के दे देगा, व्हाइट इमेजेस, स्ट्रिप्स, आरबिट कुछ ऐसी इमेज बना दी जिसमें कि ना ऐसे वैसे ऐसे बस स्ट्रिप्स हैं। क्यों बना दी? क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन ऐसे हो रहा है, सॉरी जनरेटर। अच्छा, और जनरेटर से जो उसको डिस्क्रिमिनेटर को जो दूसरी इमेजेस मिल रही है वो रियल है, वो एकदम रियल, जैसे उसमें कैट एकदम बनी हुई है, तो तुरंत ही सीख जाएगा। आप एज अ डिस्क्रिमिनेटर अगर आपको मैं एक इमेज दिखाऊं बहुत अच्छी बनी हुई, और एक इमेज दिखाऊं जिसमें कि सिर्फ कुछ 4 लाइनें खींची हुई हैं, तो आप ऑफकोर्स कहेंगे कि ये रियल है और ये फेक है। बल्कि आपको बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट आफ्टर सीइंग 2-3 डेटा आप बोलने लग जाएंगे कि ये रियल है या फेक है। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन इजी होता है और जल्दी सीख भी लेता है नेटवर्क डिस्क्रिमिनेटर। लेकिन डिस्क्रिमिनेटर का काम यह है कि पूरे बैच पे किस तरीके से मैं ऐसा लर्न करूं कि इनको जब दिखाए जाए एक्सेस या रियल से आने वाली चीज दिखाई जाए तो मैं उसको रियल बोलूं, और जो फेक से आने वाली दिखाई जाए उसको मैं फेक बोलूं। और ये जो लॉस निकलेगा वो इसमें बैक प्रोपोगेट होगा। जितनी फेक इमेजेस को मैंने रियल बोला, जितनी फेक इमेजेस को मैंने रियल बोल दिया है, ये मेरी गलती है, ठीक है। और जितनी फेक इमेजेस को मैंने रियल बोला है, वो तो मैंने इस जनरेटर के लिए अच्छा काम हो गया ना। तो जनरेटर कहेगा जितनी मैंने बना बना करके इसको दिखाई, जिनको कि इसने फेक ही बोला, इसका मतलब है कि मैं अच्छा नहीं बना पाया, वो सारे लॉसेस। मान लीजिए कि ये अच्छी नहीं बना पाया था, ये अच्छी नहीं बना पाया था, ये नहीं बना पाया था, तो इन तीनों से जो लॉस निकलता है, ये लॉस जनरेटर में बैक प्रोपोगेट किया जाना चाहिए। क्योंकि इन तीनों को देखते ही डिस्क्रिमिनेटर जान गया था कि ये तो फेक है, तो इसका मतलब ये लॉस इसमें नहीं बैक प्रोपोगेट होगा, ये लॉस इसमें बैक प्रोपोगेट होगा। अभी डिटेल में देखेंगे इसको। सर हाँ पूछिए। सर ऊपर हाँ सर, इनिशियली जैसे हम जनरेटर को जो डेटा दे रहे हैं, हम 128 डायमेंशनल है वो, और उसका जनरेटर हाँ 256 बाय 256 का जनरेट कर रहा है, वहाँ से यूनिट नॉर्मल भी वैसा कर रहा है, और डिस्क्रिमिनेटर में वो जा रहा है और बाकी सब काम हो रहा है। हाँ तो मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास इनिशियल हाई डेफिनेशन इमेजेस का डेटा सेट है 256 बाय 256 का, तो फिर मैं हाँ उसे जनरेटर में क्या एक डायमेंशनल रिडक्शन या कोई फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करने के बाद डाल रही हूँ? हाँ, देखिए ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, यही मैंने अभी ऋचा जो पूछ रही थी इनको भी यही बताया। इस चीज से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने कहाँ देखा था, अगर आपको याद हो, वीएई के अंतर्गत आप लोग निकल नहीं पाए अभी उससे। वीएई हमारा क्या कहा करता था कि यहाँ से यहाँ लेकर के आओ और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जज करते हैं। और वही बात जो आपने बोली कि वो डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ काम करता था, फंक्शन बनाता था।
मैंने बोला वो क्यों करता था, क्योंकि वो कहता था ये बहुत ही हैवी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन है और मेरे जो लॉसेस हैं उन लॉसेस के थ्रू मैं ये नहीं एस्टिमेट कर पा रहा। अब ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ये सीधा सीधा यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ तो उठा लेता है जिसका इससे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अब इसको जादू सिखाना होता है, ऐसा जादू सीखो कि भाई यहाँ से कुछ उठाओगे, जो भी बनाते हो अब जो बनाओगे सारी जिम्मेदारी उसी पे है। कहाँ से उठाया मुझे नहीं पता, आप कहाँ से ले करके आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो बना करके आपने दिया है, जैसे कि मैंने आपका टेस्ट लिया, टेस्ट लेते वक्त ये जो लड़का था ये यूट्यूब से पढ़ के आ गया, दूसरा लड़का था जो वो किसी और किताब से पढ़ के आ गया, तीसरा था जो कुछ पढ़ के ही नहीं आया, और चौथा जो था वो कोई मेरे लेक्चर से पुराने वाले या अपने सीनियर से पढ़ के चला आया। तो जहां से भी पढ़ के आए मुझे मतलब नहीं है, मैंने क्वेश्चन पेपर दिया तुम्हें, उस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर तुमने निकाला है वो रियलिटी से कितना दूर है। मैं तो यहाँ पर लॉस डिफाइन करता हूँ और उसी लॉस से मैं तुमको बैक प्रोपेगेट करता हूँ ताकि तुम जा करके ये देखो कि भाई जो कुछ भी तुम यहाँ से ला रहे हो वो ऐसा तो कुछ तो बने जो कि रियल के जैसा हो। लॉस सिर्फ इस जगह पे, बल्कि एक्चुअल में अगर आप ध्यान दें तो लॉस हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ अभी तक। लॉस कहाँ पे डिफाइन होता है? इस जगह पे जाके, कि जो भी तुम बनाते हो वो उठा करके मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन में डालता हूँ। बेसिकली जो कुछ भी तुम देते हो वो इतना गंदा होता है कि मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा होता हूँ, तो मैं उसको किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में डालता हूँ और और उस नेटवर्क को बेसिकली मैं एक दूसरे नेटवर्क को ही दिखाता हूँ। तो ये हो गया, आपने कुछ काम किया और मुझे ये अपना आउटपुट दिया, मैंने उसके ऊपर अपने टीए लगा दिए, जो टीए ने जवाब दिए उनसे आपको मैंने बैक प्रोपेगेट करने की कोशिश करनी है। तो सारी बातें यहाँ पर भी लॉस नहीं बन रहा है, ये एक इम्प्लिसिट लॉस है। इम्प्लिसिट लॉस का मतलब ये कि हम यहाँ पर इस तरह से लॉसेस निकालें सो दैट कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पास में आए। ये डिस्ट्रीब्यूशन पास में कैसे आएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूशन पास में ऐसे आएंगे कि ये आदमी अगर रियल और फेक के बीच में डिफरेंस करना जानता है तो जब भी आप कुछ बना करके देंगे वो देखेगा कि अरे ये तो फेक है, फेक है भाई, ये नहीं चाहिए। आपने कहा ये भी फेक है, ये भी फेक है, अच्छा ये सही है। जैसे आपने कहा ये सही है, आप ये समझ गए कि अच्छा इसका मतलब है कि ये बेवकूफ बनता है इन चीजों से, क्योंकि एक्चुअली तो मैं रैंडम वेरिएबल से बना रहा हूँ, तो जो भी कुछ मैं बना रहा हूँ वो फेक है। जब जब तुम एज अ डिस्क्रिमिनेटर मेरी फेक चीजों को यस बोलते हो, वो वाली ऐसी चीजें हैं जो कि दे आर गुड फॉर मी। तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने आपको कुछ दिखाया और आपने उसको कहा अरे ये तो फेक है और आपने तुरंत ही उसको फेक कह दिया, ये मेरा लॉस है। इस लॉस को निकाल करके मैं बैक प्रोपेगेट होऊंगा। और डिस्क्रिमिनेटर किससे बैक प्रोपेगेट होगा? जब जब कि वो जो रियल को फेक कह दे और फेक को रियल कह दे, तभी इसका लॉस भी हम लोग डिफाइन करेंगे। जरा हेट्रोजीनियस टाइप का लॉस होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है दोनों का। और लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं एक ही चीज वैसे बहुत देर से बता रहा हूँ, आप लोग और सवाल पूछिए मुझसे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ सर, जो डिस्क्रिमिनेटर है हाँ उसमें ट्रेनिंग मतलब इनिशियली अलग से हुई, क्योंकि अगर हम ये ग्राउंड टू टेबल देते रहेंगे हर टाइम, हाँ तो जब भी वो मतलब अगर जनरेटर ने अच्छी इमेज भी बनाई तो हम उसको ग्राउंड ट्रुथ लेवल तो 0 दे रहे हैं और हम उसको पेनलाइज कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेटर को, मतलब अगर वो उसको हाँ रियल बताता है हाँ तो सर मतलब या तो इनिशियली अलग से ट्रेन हो डिस्क्रिमिनेटर और फिर जनरेटर अटैच होकर फिर बैक प्रोपेगेट हो, ताकि डिस्क्रिमिनेटर उस टाइम ऑलरेडी ट्रेंड हो कि मतलब रियल और फेक में डिस्टिंग्विश अरे करने तुम में। लोग गेम नहीं समझ रहे हो भाई, इन दोनों के बीच में लड़ाई करानी है, इसको विजेता बना दो के खत्म हो जाएगा सब। पॉइंट समझो, फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। आपको एक खास बात बताता हूँ, जनरेटर गैन में जो ट्रेनिंग है उसका मतलब ही है कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में और compete कर रहे हैं। अगर ये आदमी जीत गया, अगर ये जीत गया, मान लीजिए मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, एक ने पूछा था, इसको मैंने ट्रेन कर लिया पहले से, तो ये हमेशा जीतेगा ना? ये सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलोगे तो कुछ भी सीख पाओगे क्या? वो हर बॉल पे तुम्हें 4 मारेगा, लेफ्ट पे डालो, राइट पे डालो, मिडिल में डाले, आप कुछ भी करेंगे सचिन तेंदुलकर आपको 4 रन ही मारेगा। तो तुम क्या सीख जाओगे? कैसे कहते हैं ना कि बड़े खिलाड़ी के साथ खेल करके सीख सकते हैं, तो सीख लो।
अरे तेंदुलकर के साथ जाकर के जब ग्लेन मैकग्राथ बॉलिंग करेंगे तो कभी वो बोल्ड करेंगे उसको, कभी वो उनको 4 मारेगा, कभी एडल डोनाल्ड के साथ मुरलीधरन, वो लोग सीखेंगे आपस में। अगर आप खेलना स्टार्ट करेंगे तेंदुलकर के साथ, विराट कोहली को दे दो भाई कहीं भी बॉल, वो तो सीधा 6 मार देगा आपको। एबी डिविलियर को आप कहीं भी दे 360 6 मार देगा। ये प्री ट्रेंड नेटवर्क्स की बात हो गई। तो अगर प्री ट्रेन नेटवर्क का क्या मतलब होगा कि आप उसे x देंगे 1 देगा, gz देंगे 0 देगा हमेशा, तो कुछ लॉस आएगा ही नहीं डी का। अगर डी ने कोई भी लॉस नहीं पैदा किया तो डी तो परफेक्ट हो गया। अगर डी परफेक्ट हो गया तो जनरेटर को सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि जनरेटर में जो लॉसेज है वो बैक प्रोपेगेट ही नहीं होंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गेट, और डी भी फिक्स हो जाएगा। आप ऐसा डी चाहते हैं, इसीलिए शुरुआत से दोनों चीजें ट्रेन होंगी। और आपको क्या करना है, डी मैक्सिमम क्या सीख पाएगा, एक्चुअली डी अंत में जाकर के फूल होने लग जाएगा। शुरुआत में डी की जिम्मेदारी है कि एक्स देखो और जीजेड देखो, एक्स देखो बोलो 1 दे, जीजेड देखो बोलो 0 है। अच्छा, धीरे धीरे करके जब तुम इस बात को सीखने की कोशिश करोगे तो तुमको फेक इमेजेस दिख रही हैं, और जो फेक इमेजेस है उनको 0 बोल रहे हो। धीरे धीरे तुमको क्या सीखने लग जाओगे कि फेक को 0 बोलना है, लेकिन तुम हर फेक को 0 नहीं बोल पाओगे और हर रियल को भी 1 नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम एक साधारण नेटवर्क हो। एक साधारण बंदा जब क्रिकेट खेल रहा है तो वो साधारण आदमी के साथ खेलेगा तो वो सीखता जाएगा। तो उसी से ये दोनों सीखेंगे, इसकी गलतियों से ये खुद सीखेगा। देखिए ध्यान से, फिर से एक बात बोलता हूं, इसकी गलतियों से डी सीखेगा, और जहां जहां ये पास हुआ है उनसे जी सीखेगा। जिन जगहों पे डी फेल होता है उनसे डी सीखेगा। भाई जिन चीजों में आप फेल होते हैं उन्हीं से आप सीखेंगे, और जिन ठीक है जगहों सर। पे डी पास हो जाता है उससे जी सीखेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये बात ओके। तो कुल मिला के हाँ, और लोग पूछ लें, किसी और को कुछ पूछना है? सर हाँ सर इसका जो सर आपने बताया था स्टॉपिंग क्राइटेरियन है, वो सर तब होगा जब इसके डिस्क्रिमिनेटर के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, तो उस हाँ समय हमारे स्टॉप हो जाएगा। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जनरेटर हमारा सही सीखने लगा है। लेकिन सर हाँ। 0.5 मतलब ये नहीं होगा सर 50% एक्यूरेसी। तो 50% एक्यूरेसी क्यों आ रही है बताओ? सर यही तो नहीं क्यों समझ में आया। तो मैंने तुमसे बोला ना कि तुम एक डिस्क्रिमिनेटर हो, पहले अपने दिमाग में रखो। अब तुम ही हो वो पुलिस और चोर का खेल हो रहा है, और तुम पुलिस हो, जी ठीक है? यस सर। अगर आप पुलिस हैं और आपको मैं एक रियल करेंसी दिखाऊंगा और फेक करेंसी दिखाऊंगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी से तुम बेस्ट जब एकदम सीख जाओगे, और 50-50% तुम्हें दिखाई जा रहा है, तो जब तुम एकदम सीख जाओगे तो तुम कितनी प्रोबेबिलिटी से रियल और फेक को डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे? मैं 50% इसकी एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि एक सैंपल आएगा तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी से उसको x कहेगा या gz कहेगा। सो एट लास्ट it is going to only, I mean if बाइनरी क्लासिफिकेशन में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन में सॉरी सबसे पुअर अगर आप देखें तो क्या हो सकता है? बेस्ट नहीं करना है, डी को कुछ बेस्ट नहीं करना है। आप ये बात समझ रहे हैं? अगर डी बेस्ट कर गया तो डी ट्रेन हो गया ना पूरा। तुम्हें किसको ट्रेन करना है पहले बताओ? हाँ चलो एक बात समझते हैं, आपको ट्रेन किसको करना है? जनरेटर को ट्रेन करने के लिए, सही कहा, इसको ट्रेन करने के लिए हमने किसको खड़ा किया है? डिस्क्रिमिनेटर का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए खड़ा है ताकि इसको ट्रेन कर सके। अगर मेरा पूरा नेटवर्क ट्रेन हो गया है तो डिस्क्रिमिनेटर वैसे भी काट के हटा के और बाहर रख दिया जाएगा, क्योंकि हम यूनिट नॉर्मल या रैंडम लेंगे और जनरेटर को दिखाएंगे और वो मेरे लिए इमेजेस बनाता रहेगा। यही तो ना होगा? यस सर। तो ये चीज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़ी है कि ये इसको ट्रेन कर सके। तो अगर आप कहते हैं कि ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट का मतलब कि ये रियल और फेक में डिफरेंशिएट करता है, तो जनरेटर के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? मतलब अभी जनरेटर जो इमेज जनरेट कर रहा है वो क्वालिटी की नहीं है, बेकार इमेज। हाँ, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, क्योंकि
डिस्क्रिमिनेटर तो जबरदस्त काम करने लगा ना, तो ओके। हमें डिस्क्रिमिनेटर को फूल करने का मतलब है कि उसे नो क्लू हो, it should be having no clue about a image whether it is real or fake. तो उसके लिए आने वाली इमेज जो है वो 0.5 प्रोबेबिलिटी से रियल हो, 0.5 प्रोबेबिलिटी से फेक हो। अगर वो इतने पे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनरेटर उसे कुछ ऐसी चीज सिखा रहा है जिसको कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। लेकिन आपको एक यहीं पे बात भी बता देता हूं कि ये गेम है और देयर आर सर्टेन कोऑपरेटिव गेम्स। अब कोऑपरेटिव गेम खेलने लगो। कोऑपरेटिव गेम समझते हो? जैसे वो ताश में नहीं होता है, दो दो लोग एक टीम में है, दो लोग एक टीम में है। आप लोग स्ट्रेटजी बना करके खेलने लगे। स्ट्रेटजी बना के खेलने ये लगे कि जनरेटर तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखा रहा है और यहाँ पर आप 0.5 ही से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप कोऑपरेट कर रहे, डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर कोऑपरेटिव गेम खेलने लग जाए, तो ऐसा भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि चलो हमें जल्दी अर्ली कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि तुम मुझे कुछ भी इमेज दिखाओ, मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा ही नहीं। और अगर मैं नहीं करूंगा तो कोऑपरेशन ऐसा हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेटर है वो कुछ भी दिखाओ, वो 0.5 प्रोबेबिलिटी से यस कहता है, 0.5 प्रोबेबिलिटी से नो कहता है। और आपने ये बोला कि यार जनरेटर ट्रेन हो गया, जब चला के देखा तो अरे ये तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे कोऑपरेटिव गेम नहीं है। दे कैन नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर। इसको अपना लॉस मिलता है, इसको एक दूसरा लॉस मिलता है, एंड दे कैन नॉट कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर विदाउट दे कैन नॉट कम्युनिकेट अदर देन दीज लॉसेस। यहाँ से कोई मैसेज यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से कोई मैसेज यहाँ नहीं आ सकता। देयर इज नथिंग लाइक दिस। So no cooperation, and discriminator need to be trained as a perfect. Discriminator need to be trained as the novice or the simplest discriminator हो जाना चाहिए, जो कि कुछ differentiate ही नहीं कर पा रहा at last। तो generator is doing very good। ठीक है, और पूछो। देखिए सर, जैसे एक चीज इस पे वो उठ रहा है, हाँ। जैसे सर जनरेटर जो इमेज हमारी जनरेट कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेटर उस पे जैसे कि फूल बन पा रहा है, क्योंकि उसकी 50% इमेज को वो रियल बता दे रहा है, 50% को फेक बता दे रहा है। ठीक है सर। तो ये अगर ऐसा करता है, हाँ। डिस्क्रिमिनेटर हमारा फूल हो गया। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर जैसे 80% इमेजेस को ही रियल बता दे, जैसे मतलब कुछ ज्यादा फूल हो जाए इस तरीके से? तो मतलब नहीं नहीं, तुम इमेजेस के टर्म्स में मत जाओ। ओके। सारे को कोई भी इमेज में दिखाऊंगा, अगर तुम इस इमेज को देख करके यू कैन से रियल ट्रेन हो, रियल एकदम जवाब हमेशा कि वो कर पा। सर आपकी वॉइस कट रही है। और दे रहा है नहीं सर, अभी भी नहीं। आपको दे रहा है, क्या रहा है? लिसन टू सर आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज अरे भाई।
हेलो, हाँ. नाउ आई अज्यूम दैट कि आप सुन. अरे यार, ये क्या हुआ? पूरा चैट. नहीं नहीं, बट दिस इज चैट. Participants are there. Okay. I assume that now you all can listen. Yes, sir. अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक्चुअली कंफ्यूजन होना ही है, क्योंकि अभी आपने अपने आप इसको नहीं देखा हुआ है. वेट फॉर सम टाइम and later we will again readdress this issue. You only have to understand that they both are competing. Remember, this is actually a game is only there if both of them are competing. This is actually a game. If there is no competition, if I started to play with Roger Federer, then there is no competition and there is no learning which is happening. If I play with someone who is similar to me, then only learning is happening. If I play with someone who is far more superior than me and there is no competition happening, then there is no learning is also happening. Fine. So let us see. Let us see few more things, and then probably it may be again clear. The main or the simple thing which is going to happen is that the binary cross entropy loss for the classification, and I assume that all of us are actually aware of this stuff, that if this is my ground truth and this is my predicted label, y is my ground truth and y hat is my predicted label, and it's going to be y log y. You all understand what was the cross entropy? Cross entropy was that information content from one and probability from other. So this is the information content from one and the probability from other. That is actually log of y hat times y. 1 minus y log of y hat. So can anyone tell me that why we are having these two terms instead of only one? Pradeep, can you tell? Pradeep, are you there? Pradeep? Pradeep is not there. Prateek, can you tell? Yes, sir. Tell me. Sir, one is to train the discriminator and other to train the generator. नहीं, ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, सिंपल. यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर नहीं है. आई एम हैविंग y, so this was my ground truth and this is the what I have predicted. This is a simple classification, cross entropy, in which I am having y as a ground truth and I have predicted y hat. I wanted to find out how far I am. Right. I have shown you one image. If I show you this image, this is going to be 0 or it is going to be 1 depending upon real and fake. Clear? Depending upon real and fake. So, so my point is that if I show you y, so this is actually the label. This is actually the label. Right. So this is the label of an image. And the ground truth of that label, this is the predicted label of that image, and they has to be as close as possible. We are not using MSE type of loss. We all understand why, and we have started to use a cross entropy type of loss. In that, you can see that we are having this term and this term. Why these two terms we are having? Sir, so when the prediction, prediction will be right, say both of y hat and y both are 1. Yes. So at that point of time, we will see that the second term will go because 1 minus 1 will become 0. So second term will go. And in the first term only 1 log. So the whole loss will be 0 basically. Both the terms will go. So if it is 1 and 1, yes. So both of the terms are going. The reason is that both of them are same. But suppose that one is 1 and 0. Right. So if suppose that this is 1 and 0, what will happen? Yeah, then because y hat is 1, so the first term will go because log 1 is 0. Yeah. And the second term will remain because because both of the things are there, some value is there. Yes. And if it is 0 and 1, then the first term will remain and second will go, right? Yeah. So that is why it's a binary cross entropy. Maybe most of the time everyone is not aware. Whenever we are writing theoretically, we just write the binary cross entropy as most of the time like this, only one term. But if we are having, you know, a 0 1 vector, 0 0 1 1 1 and 0 along with this is the ground truth 0 0 1 1, I have to predict,
And along with that, for this 0 I am saying 0, for this 0 I am saying 1, for this 1 I am saying 0, and for this 1 I am saying 1. So so several times I am mistaking. So when I take this 0 0, when I take this 0 1, when I take this, and when I take this, so what is going to happen is that if your this thing is 0, or just say that if y is 0, then only this is not active, this is active, and if y hat is 1, if y is 1, then this thing is active. So basically it's a binary cross entropy. Not every time things are going to be active. Otherwise, what will happen that if we only choose 1, then what is going to happen? What is the problem? That if I only choose 1, then what is the problem? Can you tell me? Sir, then the opposite case will not be Yes, valid. correct. It I will assume- also give the loss 0. Yes, that's correct. I assume that you all understand this. It's a very basic step I just wanted to cover, because sometimes everyone is not at the same page. Now, very simple thing that I'm going to do, and it is really confusing. That is why I written it down. I request that those who are having pen and pencil, please write it down, because it is very confusing, and please do not try to confuse, because what happened is that the whole class may actually got confused. I have written in a very explicit way. Let us write in exactly same way, and first try to understand the whole stuff, and then we will try to ask if you have any questions, because I'm sure that you're not going to have any question if you see this thing from this perspective. Let us write the discriminator loss function. You only have to remember this thing, that this is my binary cross entropy, in which this is the ground truth and this is the predicted label. Only thing that I wanted to know is that everyone is able to understand this loss function. This is ground truth that we wanted to come up, and this is the predicted that my network or my discriminator may be actually going to give me. And what is the values that you are going to get for your y? They are going to be either 0 or 1. 0 or 1. That is actually the ground truth. 0 when it is coming from generated image, or 1 when it is a real image. This is my loss function in terms of x, y, and y hat. Let us draw the write the discriminator loss function. Let us write it one by one. What is my discriminator? Discriminator is actually a classification function. It's a single classification function. You remember, this is my, it will take an image and convert it into a vector, and using that vector, it applies this type of loss and give you 0 and 1, whether it is coming from a real distribution or a fake distribution. What are the inputs? What are the inputs my discriminator is going to have? Either it is going to get things from the real distribution X, or it is going to have an image coming from GZ. Yes, is this okay to everyone? Either it is going to get things from X or GZ. Okay. If it is X, or if you have got, can you mute your microphone? Please mute the microphone. Yeah. If your image is actually, the discriminator has got a batch and it has got an image, and that image is actually coming from X. So if that image is actually coming from X distribution, assuming that this is X right now, some name given to it, X, then what is the output? So we assume that D is my function. Discriminator is actually a function which will take this thing and convert it into dx. So your output label is dx. If you have got gz, your output label is dgz. Keep on writing. Your input is either going to be X or GZ. Okay. Your output label is going to be DX or D of GZ. But the ground truth is that if it is X, then it has to be 1 because it is real. If it is GZ, the value, it has to be 0 because it is fake. Okay. If you understand this stuff, then what is the loss? What is the loss that you are going to get if you have got GZ, which is being converted by your discriminator in terms of label as D of G of Z? And what was the actual label of it? Its actual label was actually 0. It's actually 0 because it is GZ. It's coming from 0. Sorry, its real label is this. So let us see it in one by one way, that your discriminator has got a fake image. The real, the
the ground truth of that has to be equal to 0. So what is the loss now? Place it over here. Y hat and y. What is your y hat? Your y hat is this. That is why I have written it over here. What is your y? Your y is 0. That is why I have written it over here. So this is my loss function, which is actually being written over here. If it is something and 0, then you all understand that which thing is going to be active, because your y is 0, only this thing is going to be active. That is why it is log of 1 minus y hat. Is it okay to everyone? Please see it and write it. Please see it and write it, because mostly what happens that you will not be able to understand. Slightly confusing, not complex at all. लॉजिक है, लॉजिक और ये जितना भी लगता है इसमें ये बाइनरी और क्रॉस एंट्रोपी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है. आपको मैंने दिखाया x है तो dx बनेगा, और dx जो लेबल है उसको 1 के बराबर होना चाहिए. gz जो है वो dz बनेगा, dgz, और उसको 0 के बराबर होना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो हमने सबसे पहले इस वाले केस को लेकर चला. 2 केस बनेंगे, रिमेंबर, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा. क्यों? क्योंकि एक बार y1 हो रहा है. अभी प्रतीक ने बोला था कि जब y1 होगा तो ये जिंदा रहेगा, और जब y0 होगा तो ये जिंदा रहेगा. तो जब y0 है तो ये जिंदा रहेगा, तो क्या बनेगा? सिर्फ इतना ही तो ना बनेगा ना, क्योंकि y तो 0 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा. तो ये log ऑफ 1 माइनस y हैट, और log ऑफ y हैट ये है, y हैट ये है, तो ये y हैट यहाँ आ गया. y हैट ये हुआ ना. करना क्या है इसका? अगर ये एक लॉस है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ना. तो डिस्क्रिमिनेटर का क्या काम है? इस लॉस को मिनिमाइज करना. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी इमेजेस फेक हैं उन फेक को हमेशा 0 बोलो. अगर फेक है तो हमेशा 0 बोलो. अगर फेक है तो हमेशा 0 बोलो. तो यू विल हैव टू maximize, basically this thing is going to be, so D need to minimize this thing. D को ये क्या करना है? किसी भी तरीके से D को, इस चीज को मिनिमाइज करना है. क्यों मिनिमाइज करना है? इसको क्या बनाना क्या है? उसे इसको 0 बनाना है, 1 नहीं बनाना है, इसको 0 बनाना है. तो इसको जितना भी छोटा किया जा सकता है उतना इसको छोटा किया जाए basically. So this L, if we see, it is going to be the log of 1 minus D of this. Let us see what we are actually doing. We are actually trying to do it over here. This is our first thing, and this is going to be the second thing. ये directly इधर लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ है? This is written as L dx1. क्यों है? Because y hat and y. This is my y hat and this is my y. So once y hat and y, so only which one is going to be active? Because this is 1, so only first term is going to be active. That's going to be y hat, y and y hat. This is going to be dx and the log of that. So log of dx. This is going to be two values that you are going to get. And what one should have to do, one should actually going to find out that D of G of Z is equal to 0. You need to make sure that every time you show a discriminator a fake image, it has to give me 0. So this thing has to be, so this DGZ has to be maximized. DGZ is maximizing, it should not be close to 0. It should have to be, DGZ has to be minimized. It has to be not close to 0, but it has to go in the either other way. Similarly, what is going to be happening over the real images that you have got? When a real image that you got and show it to your discriminator, its value has to be maximized. Why? Because its label is actually 1, so this value has to be maximized. So you have got log of D of X. This need to be maximized. आप क्वेश्चन पूछे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. एक बार पहले सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब लोग पहले इसको यहाँ पे लिख लें. सबने लिखा होगा x है, dx बनता है और 1 आना चाहिए. gz है, dgz बनता है और 0 आना चाहिए.
हमने देखा अपनी इस टर्म के अंदर कि जब y की वैल्यू 1 होती है तो ये एक्टिव रहता है, और जब y एक्टिव ये रहता है, ये खत्म हो जाता है, और जब y की वैल्यू 0 होती है तो ये खत्म हो जाता है, ये एक्टिव रहता है। तो एक बार आपको, और जब भी y की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा log ऑफ y है। तो वही तो यहाँ बन रहा है log ऑफ y है। और जब इसमें जब इसमें y की वैल्यू 0 होती है तो ये क्या होगा, ये 0, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 1 माइनस y है। तो वही तो यहाँ बन रहा है 1 माइनस y है। तो ये दोनों लॉसेज आए, इनका करना क्या है, इनका करना ये है कि ये रियल चीज है, ये बेसिकली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए हमें इन्हें मैक्सिमाइज करना है। ये दोनों ही चीजें मैक्सिमाइज की जानी चाहिए। दूसरे टर्म्स में देखें तो दूसरे टर्म्स में ये है कि ये जो संख्या है, जो लेबल जनरेटेड इमेज का लेबल बहुत ही छोटी वैल्यू आनी चाहिए, और रियल इमेज का लेबल बहुत ही बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। हम लोग प्रोबेबिलिटीज में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज और लेबल्स की टर्म्स में, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब मुझे इसको d ऑफ gz को मिनिमाइज करना है तो d ऑफ gz, बिकॉज आप जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में, तो ये इसको मिनिमाइज करने के लिए एक तो हमने क्या बोला, 1 माइनस दिस थिंग को क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। और 1 माइनस दिस थिंग को मैक्सिमाइज मत करो, बल्कि लॉग ऑफ दैट को मैक्सिमाइज करो। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रही है, वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बहुत छोटी छोटी है, तो कभी भी लॉग की टर्म्स में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन किया जाता है तो लॉग लाइक्लीहुड को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो अगर x आता है तो x से जो लॉग प्रोबेबिलिटी बनती है उसको मैक्सिमाइज करो, और जनरेटेड आता है तो 1 माइनस ऑफ दैट की जो लॉग प्रोबेबिलिटी बनती है उसको मैक्सिमाइज करो। तो मेरा टोटल डिस्क्रिप्टर फंक्शन का लॉस बना क्या, मेरा मैक्सिमम लॉस बना मैक्स ऑफ d log ऑफ dx log ऑफ 1 माइनस d ऑफ g ऑफ z। ये बन गया आया, इसको देखें सभी लोग। हम लोग आज यहीं रुक भी जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको हाथ से लिखें अपने, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से इसको देखेंगे भी। अभी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सर हाँ, जैसे हमने l लॉस ऑफ dx, 1 लिखा है, हाँ। तो वो मतलब हमें लॉस मिनिमाइज करना है। नहीं, ये तो करेक्ट चीज है ना। हाँ देखो, ये समझने की कोशिश करो कि ये जो dx, 1 मिला है, तो ये जो तुम्हारे को जो मिल रहा है, दिस थिंग इट हैज टू बी दैट की dx और 1 जो ये वैल्यू आ रही है log ऑफ dx, ठीक है। आपको करना क्या, आपको dx को हमेशा क्या बनाना है, dx से जो आने वाली वैल्यू को क्या होना चाहिए, dx एक लेबल है, हाँ सर, उसको 1 होना चाहिए, मतलब उसको तो as close मतलब to 1 उसको होना हमें चाहिए। मैक्सिमाइज करना चाहिए। हाँ सर, वो dx ठीक को है। dx नहीं, पहले मेरी तरह चलो फिर तुम्हारी तरह चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाँ ही सर, कंफ्यूजिंग ठीक है। है। मैंने इसको एक तरीके से सेट किया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, और उन्हीं कारण से ये मतलब जो है ना, ये आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। हमने पहले इसको dx रखा, ये जो dx है अगर ये रियल इमेज से है तो ये वैल्यू हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, ये हाई होनी चाहिए। तो अगर ये हाई होनी चाहिए तो हमने dx को मैक्सिमाइज करना चाहोगे, डिस्क्रिमिनेटर सर। dx को मैक्सिमाइज हाँ करना सर। चाहेगा कि नहीं चाहेगा, हाँ चाहेगा। सर। तो अगर डिस्क्रिमिनेटर dx को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो अब ये तो मैक्सिमाइज करने में वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, तो हमने उसके लॉग को मैक्सिमाइज करना स्टार्ट किया। दूसरी बात पे आओ, अगर जनरेटेड इमेज दिखाता हूं तो इसको तुम क्या चाहोगे, जनरेटेड इमेज जो है, ये जो जनरेटेड इमेज है इसका लेबल छोटा होना चाहिए। हाँ इस जनरेटेड इमेज सर, करो तो जितना छोटा कर लो उतना ही ठीक। अच्छा है डिस्क्रिमिनेटर के लिए। तो उसने इसको जब छोटा करने के लिए बोला तो हम dgz को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये 1 माइनस dgz को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और लॉग लगा दो उसका तो उसको भी तुम मैक्सिमाइज करते हो। इसीलिए ये दोनों चीजें जो यहाँ से निकल करके आ रही है,
टोटल डिस्क्रिमिनेटर का लॉस इन दोनों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। हाउ कैन आई मैक्सिमाइज दीज टू थिंग्स? अब बात ये आती है कि तुम कह रहे होगे कि ये तो एक लॉस है तो इसको पास होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि डी ऑफ एक्स को जब वो 0 कहता है तो इसे मिनिमाइज करना होता है। अच्छा, एक फंडा क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही छोटी छोटी हैं और आपने उस तरह से देखी नहीं होगी। लेट मी राइट इट डाउन। इसमें क्या कहते हैं कि एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। अगर आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चीज मिल जाए तो आपके यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। ट्रू पॉजिटिव, सॉरी एक मिनट मैं इससे लिखता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो अगर मैंने पॉजिटिव दिखाया तुम्हें और आपने बोला कि ये पॉजिटिव है, देन इट इज ट्रू पॉजिटिव। और अगर आपने उसको बोल दिया नेगेटिव तो इट इज फॉल्स नेगेटिव। अगर आपको नेगेटिव दिखाता हूं और आप बोलते हैं कि ये नेगेटिव है तो ये ट्रू नेगेटिव है। और अगर आप उस नेगेटिव को देख करके पॉजिटिव बोलते हैं तो वो फॉल्स पॉजिटिव है। ये बात समझ में आई? पहले तो ये हाँ बात सर, आई? हाँ सर, ये हाँ आ गई। सर। तो अगर आप ये समझ गए तो इसमें जो ये डायगोनल है ना ये सत्य है, इसको बढ़ावा देना है। और ये है लॉस, झूठ, इसको नीचे लेके जाना है। तो चाहे आप एक काम करें कि उसको बढ़ाएं, इस चीज को बढ़ाएं, चाहे इस चीज को घटाएं। तो हम इस चीज को बढ़ाने वाली बात यहाँ लिखी हुई है, ये सत्य है, इसको बढ़ाना है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, और ये ठीक है। क्लासिफिकेशन के द्वारा देखी गई चीजें हैं। क्लासिफिकेशन मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव भी देख सकता है, नेगेटिव भी देख सकता है। और अगर नेगेटिव देखता है तो ये उसकी एरर है। और ये भी ये अगर नेगेटिव को पॉजिटिव देख ले तो ये उसकी एरर है। और ये उसकी एरर नहीं है। तो चाहे तो एरर को रिड्यूस कर लो या इस चीज को मैक्सिमाइज कर लो। दोनों तरह से करोगे यही बन करके आएगा। ओके सर, ओके। हाँ, तो आपके सामने जो मैंने डिस्क्रिमिनेटर लॉस फंक्शन लिखा कि ऑल डिस्क्रिमिनेटर्स, कोई भी चुन लो। डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है? ऐसे पैरामीटर्स को चुनना कि लॉग लाइक्लीहुड ऑफ dx बढ़ जाए और लॉग लाइक्लीहुड ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ z भी बढ़ जाए। या यूं कह लें लॉग लाइक्लीहुड ऑफ डी ऑफ जी ऑफ z घट जाए। तो हम एक लाइन में बोलूं कि लॉग लाइक्लीहुड ऑफ dx बढ़ जाए और लॉग लाइक्लीहुड ऑफ डी ऑफ जी ऑफ z घट जाए। लेकिन अब इसको एक ही टर्म में लिखना मुश्किल पड़ता था तो 1 माइनस करके दोनों को मैक्स के टर्म्स में लिख लिया। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। आज हम लोग